Hello students, this is Sangeeta Vishwakarma and welcome to our Concepts of Chemistry. In our last class, we discussed about what is exactly matters and what are the characteristics of the matters. And today's video, we are going to start next topic that is related to the previous one, states of matter. Basically, there are three states of matter which are very important according to our syllabus of the 9th standards. But instead of that, there are two more states of the matters. Being a student, you should have a knowledge that is 4th and 5th states of matter. We will discuss 4th and 5th state of matters after this one. So, by exam point of view, solid, liquid and gaseous states are very important. See, this is a solid, liquid and gas, right? In solids, there are some molecules. There may be molecules, atoms. Basically, these are particles. Yeah, particles may be atoms and molecules. So, in solid state, the particles or a molecule or atoms are joined together कॉम्पैक्टिवली. दैट मीन्स वो कॉन्सिक्यूटिव मैनर में एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं. देयर इज नो गैप बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. तो सी हियर, देयर इज नो गैप बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव molecules, and same here, right? If you see the liquid state, in liquid state there are some gap between two particles or two molecules. This one is a gap, this and that. These are the gap which is not in a solid. And see gas. In gas, there are some particles, they are moving around here and there. There is also gap, but as compared to a liquid state, this gap is much more, right? So, on the basis of the gap between two consecutive atoms or molecules, you can say you can differentiate most of the property on this basis. First is intermolecular space. Intermolecular means these are the two molecules, right? So they have gap or not. This is the center of the molecule, right? So intermolecular means this gap. In which state this gap can exist? So we'll see first in solid. In solids there are two atoms. तो यहाँ कोई गैप है? नहीं. यहाँ है? नहीं. तो on the basis of the intermolecular space we can say no space. There is no space. Same in liquid? Yes. Or you can say गैप यहाँ भी है और गैप यहाँ भी है. तो यहाँ क्या आ जाएगा? More space. जनरल कंक्लूजन क्या है? गैस में सबसे ज्यादा गैप होता है बिटवीन टू और मोर मॉलिक्यूल्स के बीच में देन लिक्विड एंड देन सॉलिड. सॉलिड में नेग्लिजिबल को एन से शो करते हैं. नेग्लिजिबल यानी ना के बराबर है, राइट? सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. दो मॉलिक्यूल्स कोई जब एक दूसरे से बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? बहुत ज्यादा है. जैसे दो फ्रेंड्स होते हैं, उनके बीच का बॉन्ड होता है. एक को कुछ बात बोल दो तो दूसरे को पता चल जाती है कि ये बात उसने ये बोली है, राइट? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से पैक्ड है. तो दैट मीन्स यू कैन से द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर हियर. ज्यादा है तभी तो मॉलिक्यूल एक साथ है, वो दूर नहीं जा रहे. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर बिखरे हुए होते. यहाँ उन चीज को कौन बांध कर रख रहा है? किसने टाई अप किया है सबको? एक फोर्स है जो कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो उनको बांध कर रखते हैं, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट? यहां पर क्या है? लेस, कंपैरेटिवली लेस है, बिकॉज यहां पर क्या है? टू मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप है. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आते. अब क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से स्पेस बढ़ गया. तो क्या स्पेस बढ़ने से क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या इनके बीच में कम है, राइट?
तो you can say let's see this one. In gases there is very low force of attraction, even negligible force of attraction. You can say negligible, right? इसका एग्जांपल लेते हैं. इस रूम में एयर है, ठीक है, इट इज फिल्ड बाय एयर. अगर मैं इस रूम, ये क्लोज रूम है, इस रूम को ओपन कर देते हैं. जैसे ही रूम ओपन किया तो क्या होगा, गैस का एक्सचेंज होगा आउटर एनवायरनमेंट के साथ, राइट? द एक्सचेंज ऑफ एयर बिटवीन रूम एयर एंड एटमॉस्फेरिक एयर, राइट? तो वो क्या, मॉलिक्यूल्स दे आर फ्रीली मूव, दे कैन फ्रीली मूव, राइट? बिकॉज यू कैन से इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स ऑफ attraction. Is it clear? Next, on the basis of this one, you can define two more property, shape and boundary. Solids. Solids के example है marker. बहुत सारे examples हैं. Chair, table, fan, light, tube light. There are lots of examples. अब फोर्स में मैंने क्या बोला था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है सॉलिड्स के मॉलिक्यूल में. अगर आप चेयर के ऊपर बैठते हैं, चेयर की अपनी एक रिजिड शेप होती है, फिक्स्ड शेप है, आप चेयर के ऊपर बैठते हैं, क्या बैठने से चेयर दबती है, कंप्रेस्ड होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं. तो जो शेप उसकी है एज इट इज उसकी शेप रहेगी. दैट मीन्स सॉलिड में शेप फिक्स होती है. नेक्स्ट पॉइंट आता है बाउंड्री. बाउंड्री क्या है, मैं एक सॉलिड का एक पीस ले रही हूं. चलो चेयर का एग्जांपल लेते हैं. मैंने एक चेयर ली, राइट? ये चेयर ली. अब चेयर पर कोई पर्सन बैठ गया है, बैठने से कंप्रेस्ड नहीं हुई, इसकी शेप फिक्स है, तो चेयर की बाउंड्री भी शेप फिक्स है. ऐसा तो नहीं है बैठने से ये क्या हो जाएगा, ये इसकी जो बाउंड्री है वो फैल जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता. तो यू कैन से शेप फिक्स एंड बाउंड्री, दोनों एक साथ लिख सकते हैं, बाउंड्री भी फिक्स है. नेक्स्ट वन इज लिक्विड. अब लिक्विड के एग्जांपल लेते हैं. आपने एक बॉटल में पानी लिया 1 लीटर, उस वाटर को आपने एक जग के अंदर ट्रांसफर किया, तो अब वाटर की शेप जो कि बोतल की शेप थी, अब वो किस में चेंज हो गई है, जग की शेप में. अब वही सेम लीटर ऑफ वाटर यू कैन ट्रांसफर इन एनी यूटेंसिल. आई एम गिविंग यू एग्जांपल ऑफ द कंटेनर. इट्स लाइक अ बिगर बॉल. जैसे ही आपने उस बिगर बॉल में वो जग वाला वाटर ट्रांसफर किया, तो क्या हो जाएगा, अब वाटर की शेप क्या हो गई, उस बॉल की शेप हो गई. ठीक है ना? तो क्या हुआ कि जो हमारे लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स की अपनी कोई शेप नहीं होती, ना ही रिजिड बाउंड्री होती है. तो लिखो नॉट फिक्स. सेम इन गैसेस. आप एक बड़े से जो कंटेनर में गैस है, उस गैस को एक छोटे से बॉक्स में भी फिल कर सकते हैं, सेम अमाउंट ऑफ गैस. अगर आपने, चलो एक एग्जांपल देती हूँ. एक इतना सा बॉक्स है, उसमें आपकी कुछ अमाउंट ऑफ एयर है, आपने उसमें ट्रांसफर की. अब वही जैसे ही आपने रूम में खोला, रूम, तो वो पूरे रूम में फैल गई, राइट? यू कैन से शेप इज नॉट फिक्स. नॉट फिक्स. देन कंप्रेसिबिलिटी. कंप्रेसिबिलिटी मीन्स होता है दबाव. अगर आप किसी चीज को कंप्रेस्ड करते हैं, यानी एक फोर्स लगाते हैं, वो चीज कंप्रेस्ड, यानी वहां से जैसे फोर्स लगाया, क्या वो चीज डिफॉर्म होगी, यानी अपनी शेप चेंज करेगी या नहीं. अब यहां पर ये क्या है, हमने एग्जांपल लिया सॉलिड का. चेयर लिया, जैसे लास्ट एग्जांपल लिया था, चेयर के ऊपर कोई बैठा हुआ है, तो क्या चेयर अपनी शेप चेंज करती है? नहीं करती. देन फिर क्या हो गया, आपने टेबल लिया है, टेबल पे भी अगर आप बैठते हैं तो वो अपना शेप चेंज नहीं करता. किसी भी सॉलिड चीज के ऊपर, आप अगर स्कूल में आप डेस्क के ऊपर बैठते हैं, तो सॉलिड जितने भी होते हैं दे आर
नॉट कंप्रेसिबल, नॉट कंप्रेसिबल। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कंप्रेसिबिलिटी इन लिक्विड। लिक्विड कंप्रेसिबल होते हैं बट इतना कंप्रेसिबल नहीं होते एज कंपेयर टू गैसेस। इसके एग्जांपल देखते हैं। एक टब है, टब में एक मग रखा हुआ है, आपने हाथ से इसके ऊपर फोर्स लगाया, जैसे ही फोर्स लगाया तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स दे हैव सम स्पेस बिटवीन देम। एज सून एज यू अप्लाइड अ फोर्स ऑन द मग, राइट, जैसे ही फोर्स अप्लाई किया तो वो फोर्स क्या हो, ये मग यहां प्लेस हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल मूव करने लगेंगे, बीच में या गैप आ जाएगा बिकॉज दे हैव गैप बिटवीन देम। सो व्हाट विल हैपन कि इसमें कंप्रेसिबिलिटी होती है मोर देन सॉलिड बट लेस देन गैसेस। तो यू कैन से यस, लेस compressibility. Next one for the gases. Gases are more compressible. More compressible. बेस्ट एग्जांपल है पिस्टन। आपने देखा होगा एक पिस्टन है, यहां एयर है, राइट, इतने में एयर है, फिल हुआ है, ये पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। इफ यू अप्लाई द फोर्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द पिस्टन, व्हेन वी अप्लाई इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, द पिस्टन विल मूव एंड विल टेक द पोजीशन ऑफ दिस वन आफ्टर अप्लाइंग अ फोर्स, and the particles of the gases which are spread out of this area, they will settle themselves in small area. If you have compressed a more one, they can easily settle here. So yes, you can say gas are more compressible as compared to other states. Is it clear? Next is volume. Volume, most of the properties are interrelated to each other. Volume, solids, yes, सॉलिड का फिक्स वॉल्यूम होता है, चेंज नहीं होता। देन लिक्विड, लिक्विड का वॉल्यूम क्या है आपका, लिक्विड का वॉल्यूम भी फिक्स है, फिक्स, फिक्स, but the volume of the gases are not fixed, not fixed। इसको भी अब एक एग्जांपल से समझते हैं, राइट। ये भी लास्ट में एग्जांपल ही दिया था कि वही है कि आप एक एयर को एक छोटे से बॉक्स में भी इजीली फिल कर सकते हो और उतनी ही एयर को उससे बड़े कंटेनर में भी और उससे बड़े में भी। जैसे एग्जांपल में पिस्टन का दिया था मैंने कि एयर है पिस्टन में यहां तक फिल की हुई है, राइट, ये पिस्टन है ऊपर से इतने में है। जैसे मैंने उसे कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद जैसे ही कंप्रेस किया तो वही एयर पार्टिकल या वो गैसेस पार्टिकल्स दे कैन बी फिट themselves this area, right? Then again if you are going to compress this one deep down, then you will see the particles which can easily exist themselves, जो पार्टिकल्स है जो इतने सारे वॉल्यूम में अपने आप को स्प्रेड कर रहे थे, जब आपने फोर्स अप्लाई की तो वो इस स्मॉल से एरिया में आकर अपने आप को इसमें एडजस्ट हो गए, आप ये बोल सकते हो। तो आप कह सकते हो नहीं, वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, आप अमाउंट ऑफ गैस को आप छोटे से एरिया में भी रख सकते हैं और बड़े में भी, क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे हैव लॉट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वो मॉलिक्यूल्स बाहर भागना पसंद करते हैं, दे हैव लॉट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो वो क्या करते हैं, वॉल को स्ट्रक करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, so that's why, and the two things are there, for less force of attraction and more kinetic energy, so that's why they will strike the wall of the container, तो एक दूसरे से दूर भागते हैं। आप उन्हें कंप्रेस फोर्स लगा के दूर कर दोगे तो छोटे से एरिया में आ जाएंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन इज फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मीन्स होता है
फ्लो करना किसी चीज का, बहना। तो सॉलिड्स के अंदर फ्लूइडिटी नहीं होती, नो। लिक्विड के अंदर यस, आपने दूध डाल दिया है, पानी गिर गया, थोड़ी देर में आप देखोगे जिस स्मॉल एरिया पर गिरा है वो मिल्क या फिर वाटर वहां से फ्लो करना शुरू कर देता है। तो जितने भी सॉल्ट लिक्विड्स होते हैं दे हैव फ्लूइडिटी, और यू कैन से यस। इन gases, yes, they have fluidity. Diffusion, this is very important, very important. Property is diffusion, that is very important from exam point of view. In 1 mark examiner can ask you the definition, right? So the intermixing of the particles of matter of different matters is called diffusion. डिफ्यूजन क्या होता है कि दो सेम तरह भी हो सकता है, सेम टाइप के और डिफरेंट टाइप के भी, जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाएं, डिफ्यूज हो जाएं। जैसे सॉलिड में भी, सॉलिड लिक्विड एंड गैस में भी, और सॉलिड का गैस में भी हो सकता है, राइट। तो ये डिफ्यूजन यानी उनका मिक्स होना, इनको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड अ डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन के लिए सबसे ज्यादा डिफ्यूज क्या होगा? अगर मैं सॉलिड लूं, सपोज आई एम गिविंग यू एग्जांपल, शुगर एंड सॉल्ट, उन दोनों को मिक्स किया, क्या वो इजिली अच्छे से मिक्स हो सकते हैं? नॉट पॉसिबल। दे कैन मिक्स बट इतना अच्छे से डिफ्यूज नहीं होगी, यानी इंटरमिक्सिंग नहीं हो पाएगी। फिर हमने लिया लिक्विड अच्छे से डिफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन सभी लिक्विड नहीं। जैसे आपने वाटर लिया, वाटर के अंदर आपने लेमन को स्क्वीज करके डाल दिया। लेमन भी क्या है? टाइप ऑफ द लेमन, जो सिरप है, जूस निकलता है, टाइप ऑफ लिक्विड। देन कुछ और है, अगर आपने सपोज करो आपने मिल्क डाल दिया वाटर के अंदर, वो मिक्स हो जाएगा, लेकिन वो एक अनदर एग्जांपल है दूसरे टाइप का। मिक्स तो होगा लेकिन वो दिखाई देगा। जो कंप्लीटली मिक्स हो जाए, बेसिकली डिफ्यूजन, उसे बोलते हैं परफेक्ट डिफ्यूजन। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी यू कैन डिफरेंशिएट कि आपका नॉट डिफ्यूज सॉलिड को बोल सकते हैं लिक्विड, लेस डिफ्यूज, और इसको बोल सकते हैं कंप्लीटली डिफ्यूज। कंप्लीटली डिफ्यूज। तो क्या कर सकते हैं आप? जनरलाइजेशन कर सकते हैं इन प्रॉपर्टीज में कि सबसे ज्यादा किसमें डिफ्यूजन होगा? गैस में, फिर लिक्विड में, और फिर सॉलिड में। इसका एक एग्जांपल और देती हूं, और सॉलिड में ना के बराबर भी हो सकता है, कि मम्मी ने खाना बनाया, गर्म खाना था, राजमा राइस बनाए मम्मी ने, और आप रूम से बाहर बैठे हैं, आपको पता चल जाता है कि खाना बन गया है। ठीक है, कैसे बनता है कि जो खाना था हमारा बना राजमा, उसका अरोमा, उसकी खुशबू क्या हुआ? एयर पार्टिकल में मिक्स हो गई। एयर पार्टिकल में मिक्स होने के बाद क्या हुआ? जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं, दे हैव, अभी हम डिस्कस्ड बिफोर सम टाइम, कि उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा। तो क्या होगा? जो गैप है उनके बीच में, उसमें अरोमा क्या होगा? मिक्स हो गया आकर। सपोज करो ये एयर पार्टिकल है, सी हियर, एंड ये खाने की खुशबू इनके बीच में मिक्स हो गई, राइट? तो डिफ्यूज हो गए। अब वो धीरे धीरे वहां से, क्योंकि इनमें क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होती है,
तो मॉलिक्यूल्स क्या किए, वहां से वो एक दूसरे से डिफ्यूज हो गए और फिर वो दूर भागने लगे काइनेटिक एनर्जी की वजह से। तो हम चाहे घर के एक कॉर्नर में बैठे हो या फिर आउटसाइड द गेट बैठे हो, हमें पता चल जाता है कि घर में खाना बन गया। इज इट क्लियर? ये है कि आपका गैस के साथ ज्यादा डिफ्यूजन होता है। सेम एग्जांपल है, अगर मैंने एक प्लेट में खाना रखा है, मेरा यही राजमा राइस गर्म रखा है, और यहां पर रखा है मेरा खाना बासी खाना, ठीक है, स्टिल खाना मेरा रखा हुआ फूड, तो क्या होगा? ये क्वेश्चन भी है आपकी एनसीईआरटी में। इस खाने की खुशबू आपको आ जाती है, इसकी नहीं आती। रीजन क्या है? रेट ऑफ डिफ्यूजन बेसिकली डिपेंड करता है आपके टेम्परेचर के ऊपर, राइट? गर्म खाने में टेम्परेचर है, तो मॉलिक्यूल्स ने क्या किया? आफ्टर गेटिंग अ टेम्परेचर they will start to accelerate, right? They have more kinetic energy, that's why they start to move here and there. So diffusion rate is totally maximum depend on the rate of the temperature, कि कितना टेम्परेचर दिया जा रहा है। then you can say diffusion is directly proportional to the temperature. खाना तो घर में ये भी बना हुआ है, ऐसा तो नहीं इसके अंदर खुशबू नहीं होगी, लेकिन आपको इसकी खुशबू ज्यादा आ जाती है इस वाले खाने की। स्टॉल जो फूड है आपका बासी, उस वाले फूड की खुशबू नहीं आती। नेक्स्ट इज डेंसिटी। डेंसिटी देखिए, डेंसिटी जितने भी सॉलिड्स होते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी? मास ओवर वॉल्यूम। मास आपका फिक्स है, वॉल्यूम सॉलिड में फिक्स है, तो दैट मीन्स इट्स अ फिक्स। अब देखिए यहां पर वो डेंसिटी क्या हो गई? मास फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है, तो डेंसिटी फिक्स। कम टू द गैस, गैस का मास फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स नहीं है, बिकॉज इट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ compressibility. It can fix in a small box, it can same amount can fix a bigger one room, right? So you can say the mass over volume, if you see mass is fixed but volume not fixed, then you can say the density of the gases are not fixed. Then right here, not fixed. Note down it. Next one is fourth one, that is plasma, and fifth one is Bose-Einstein condensate. इसको बोलते हैं BEC, राइट? प्लाज्मा। प्लाज्मा जो स्टेट है, इसमें क्या है? सुपर एनर्जेटिक एंड एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ द आयंस। देखिए कैसे, आपको पता है जितने भी किसी भी चीज का अगर एटम है, सबसे पहले क्या होता है? मॉलिक्यूल। यहां देखिए मॉलिक्यूल, उनसे छोटे एटम्स, एटम से छोटे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है? अब कोई ये एटम है, एटम को जब हम कोई एनर्जी देंगे, ठीक है, हीट एनर्जी या कुछ भी एनर्जी हमने दी, इसमें क्या है? यहाँ एक न्यूक्लियस होता है, आउटर साइड इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड इट, इट्स अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। जैसे ही आपने एनर्जी ट्रांसफर की, तो क्या हुआ? क्या होगा? इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर बाहर आ जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पीछे क्या हो जाएगा? एक कैटायन। तो क्या होगा? बेसिकली अगर आपसे प्लाज्मा स्टेट पूछी जाए तो आप क्या बोलेंगे उसे? आयंस, आयोनाइज्ड। यानी कोई भी एटम, एनी एटम व्हेन गेट एनर्जी, then after getting energy it will start to excite, and then what will happen? It will ionized. It will be ionized and release electron and form itself cation. तो क्या होगा? बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द, यू कैन से
you can replace ions by, it is a combination of cations and electrons. You can say electron. इसका एग्जाम्पल है कि यहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, जिससे एक्साइटेशन के बाद जिस इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं, कैटायन का फॉर्म होता है, दैट इज अ फॉर्म ऑफ द आयोनाइज्ड फॉर्म। और इसके बेस्ट एग्जाम्पल है फ्लोरोसेंट ट्यूब और दूसरा है नियॉन साइन बल्ब। आजकल तो प्लाज्मा टीवी भी आने लगे हैं और जो आपका डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल है दैट इज सन। सन के अंदर हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होता है, वहां इतनी ज्यादा एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है, हम इतनी दूर हैं, हमारे पास भी हीट एनर्जी इतनी आती है, तो वहां उसके अंदर कितनी हीट एनर्जी होगी। तो क्या होता है वहां पर यही प्रोसेस चल रहा होता है कि हीट के बाद इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, उसमें आयोनाइजेशन होता है। तो सेम यू कैन रिलेट दिस फॉर्म टू सन, इट्स अ बेस्ट एग्जांपल। नेक्स्ट वन इज फिफ्थ, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बेसिकली बोस जो थे सत्येंद्र नाथ, ये इंडियन फिजिसिस्ट थे, सत्येंद्र नाथ, इन्होंने कैलकुलेशन की थी स्टेट के लिए। फर्दर इन्होंने डिस्कशन किया और इन दोनों ने इस पर वर्क किया। तो और कंडेंसेट मींस क्या है? कंडेंसेट जैसा नेम बता रहा है, कूल करना, सुपर कूल करना। इट इज रिटन है बाय कूलिंग अ गैस बाय एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। एक्सट्रीमली कितना? ये टेम्परेचर है आपका 0 केल्विन। आई एम नॉट सेइंग 0 डिग्री, 0 केल्विन, दैट मीन्स इक्वल टू -273। इससे कम टेम्परेचर कोई नहीं हो सकता, ठीक है, सबसे लो टेम्परेचर है। एंड डेंसिटी लो एज 100,000 टाइम। और क्या है कि इतनी जो एयर की डेंसिटी होती है 1000 टाइम्स देन एयर। एयर की डेंसिटी से कितनी टाइम लेस है वो? 1 लाख। इतना टाइम क्या है? लो है। और क्या? वेरी लो टेम्परेचर पर। तो यही आपके अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ द 9th स्टैंडर्ड you have to keep in your mind one thing, in plasma super energetic excited particles होते हैं, ionization होता है, प्लस उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्लस कैटायंस फॉर्म होते हैं। बेस्ट एग्जांपल है आपका सन है, फ्लोरोसेंट ट्यूब है, आपका नियॉन बल्ब एंड देन प्लाज्मा टीवी। these are the example of plasma. And Bose-Einstein means the cooling the gas extremely low temperature, that is 0 Kelvin equal to -273 Kelvin temperature। और डेंसिटी कितना लो करना है? 1 by lakh। इतना टाइम उसको लो डेंसिटी करना है। और बेसिकली इसमें क्या बात कही थी कि जो आपके पार्टिकल्स होते हैं, जब उन्हें इतना डेंसिटी कम कर देते हैं एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पर, तो वो क्या फंक्शन करने लगते हैं? पार्टिकल से वेव फंक्शन में, पार्टिकल्स चेंज इनटू वेव की फॉर्म में आ जाते हैं, राइट। और इसका जो एग्जांपल है ये क्वांटम कंप्यूटर के लिए बहुत यूजफुल है। सो आज का जो टॉपिक हुआ है उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक क्वेश्चन आता है कि स्पॉन्ज जो है हमारा वो सॉलिड होते हुए भी कंप्रेस्ड हो जाता है, रीजन क्या है? रीजन है ये स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरह से अरेंज हैं, राइट। अब उनके बीच में कुछ स्पेस होता है जहां पर क्या होता है? एयर ट्रैप हो जाती है, एयर ट्रैप हो जाती है, ठीक है। When you apply force on it, फोर्स क्या है? इस डायरेक्शन में आपने लगाया, जैसे ही फोर्स लगाया तो क्या हुआ? इसने अपना फॉर्म डिफॉर्म कर लिया, यानी वहां से क्या होगा? डिप्रेस्ड हुआ। जैसे ही यहां से ये डिफॉर्म होगा तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? और क्लोजर हो जाएंगे। दैट मीन्स जो एरिया है इन विच द एयर इज ऑलरेडी
trapped. It will, in that case, when you apply the force on it, the air is expelled out. तो क्या होगा उस कंडीशन में, एयर चली गई और वो स्क्वीज होगी, आप कह सकते हैं वो कंप्रेस्ड हो गया। जैसे ही आपने फोर्स हटाई, रिमूव किया, फोर्स को रिमूव किया, देन अगेन इसने क्या किया, अपनी शेप वही ले ली। So you can write in answer, air is trapped in the gap between the molecules in a sponge, and as soon as you remove the force, you compress the particles, you compress the part of the sponge, then air is expelled out, right? Next question आता है कि आप, ये नंबर 1 सेकेंड क्वेश्चन, कि किसी ने परफ्यूम लगाया होता है, तो आप इवन यू आर सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे, देन आप बोल देते हैं अच्छा ये वो वाला परफ्यूम लगाया तुमने, अच्छा परफ्यूम यहाँ से खुशबू आ रही है। तो ऐसा क्यों होता है, ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ फूड अरोमा से, राइट? सेम क्वेश्चन है, क्योंकि क्या होता है, परफ्यूम के जो पार्टिकल्स होते हैं, परफ्यूम पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो एयर के साथ डिफ्यूज हो जाते हैं, एयर के साथ डिफ्यूज हो जाते हैं। इवन यू आर सीटिंग सेवरल मीटर्स अवे, देन आफ्टर डिफ्यूजन आपको पता है जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं, इट्स टाइप ऑफ द गैस, राइट? तो ये क्या होते हैं, इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी आती है तो क्या करते हैं, ये बाहर भागते हैं, मतलब मूवमेंट ज्यादा। ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ द परफ्यूम इन एयर पार्टिकल्स, even we are sitting several meters away from that person, we can easily smell the perfume, right? So next video में हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को कवर अप करने के लिए। Then till then keep watching and keep learning, और हाँ, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।